Okay, so today we are having the 13th lecture, and this is the concluding lecture where we discuss about the new education policy. Now I'm sharing my screen. Let me know if it is visible to you. All right. Now, new education policy, that is in short way, you can say NEP 2020. Now, this new education policy, the draft, it is based on the draft which is on this policy, and that draft was in the year 2019 by K. Kasturi Rangan. He was the chairperson that time. And this policy is basically for, the main intention was to facilitate and you can say more participatory, more holistic approach towards the education, towards the knowledge, and also to open up new gates for the foreign universities to come in, and some improvements, for some improvements in the earlier existing education system. The main intent was that. And there is, you can say, a progressive a shift towards more, you can say, scientific approach towards the education. So basically, this education system, the main objective, you can say, is to develop, a cognitive development as well as social and also physical awareness stages within the children. So this global, you can say, education development agenda, it is reflected in the goal 4 in SDG. SDG is Sustainable Development Goal, all right, which is adopted by most of the nations under UN. And this was adopted by India in 2015. And the agenda was set to, achieve those goals by 2030. So that's why this agenda is, a 2030 agenda, sometimes it is called. And keeping those sustainable goals in the education sector, this new education policy came into existence because it was adopted in 2015. Then in 2019, the draft was made, and based on that draft, this uh, NEP 2020 came into existence. And the main aim is, to make India, at a higher, you can say, level in uh, on a global platform. So this is basically, you can say, the third education policy. After 1968, we have already discussed, and then 1986. So this was the third education policy, new education policy 2020. Now MHRD changed to MOE, as I already told you. This Ministry of Human Resource Development changed to Ministry of Education. Now here in this new education policy, it is divided into 4 parts. School education. School education start from, pre preparatory school to the secondary school, that is, you can say, 12th. And after that, higher education. Then apart from the school and college or university education, there is open gate for adult education. And this adult education is, having no age bar, you can say. And also the education or any certification is available online too. So this is,
taking the advantage of new technology and new, you can say, techniques, new advancement in the overall, you can say, sector. So also it is implemented in education sector as well. And then implementation. Implementation means making it happen. And how you have to make it happen, this policy shows us various, opens up various gates. So जो नया शिक्षा नीति है, जिसको कि 2020 बोला जाता है, क्योंकि 19 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इनके सुपरविजन में एक पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ, एक पूरा उसका प्रारूप जिसे कहते हैं एजुकेशन सिस्टम का, वो तैयार किया गया। और ये समझा गया जैसे कि कुछ चीजें इसमें ऐड की गई कि किस तरह से पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन और डिग्री लेते जाओ, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी नागरिक का। तो वो सब चीजें जो है एक समाज को, एक परिवार को, समाज को और देश को एक समृद्धि की ओर ले जाता है, एक नए प्रोग्रेसिव रूट पे उसको डायरेक्ट करता है, ये सोचना चाहिए। और इसके लिए हमें जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच जो है वो होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन जो पर्पस है या मेन उद्देश्य जो था, वो यही है कि जो ज्ञान का प्रसार प्रचार किया जाए, हर कोई नागरिक जो भी किसी भी एज का हो, वो जो है इससे इसका लाभ ले सके, पढ़ाई कर सके, और किसी भी जेंडर का। तो वो, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी समाज का, किसी भी देश का तब होता है जब उसका हर नागरिक पढ़ा लिखा हो, अपने अच्छे बुरे के बारे में उसको समझ हो। और क्योंकि जब तक ये डायरेक्शन नहीं है, जब तक ये दिशा नहीं है आपको कि कहाँ जाना है, कैसे अप्रोच करना है, तो आपका डेवलपमेंट अधूरा रह जाता है। आपका जो कहना चाहिए कि आपकी जो उन्नति है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। अब ये जो पॉलिसी बनाई, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एक मीटिंग में 2015 में पूरे देश के लोग, जो सुप्रीम लीडर्स हैं, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ कुछ चीजों पे बात की। उनमें से एक जो है वो शिक्षा के बारे में था कि भाई शिक्षा में भी आपने काम करना है। तो उस एजेंडा को क्योंकि आप उसका पार्ट थे, तो आपको भी वो चीज आनी चाहिए, उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। तो ये जो जितने भी सस्टेनेबल गोल्स थे, 7 सस्टेनेबल गोल्स हैं, उनमें से एक शिक्षा के ऊपर है। तो ये जो गोल्स हैं ये सेट किए गए 5 साल के लिए, 2030 तक के लिए, कि हम ये काम इस सेक्टर में करेंगे और ये हमारा एम होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखकर जो है मैम ये 10 साल होगा ना, 2030 से? हाँ, पर 2015 की बात है ना ये। अच्छा अच्छा। तो अ, क्या क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो उसमें ये सेट किया गया, उसके बेस पे 2019 में इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। और फिर कि भाई 2030 तक हमारा जीईआर इतना हो जाएगा, या हम इस सेक्टर में इतना काम कर लेंगे, इस तरह से हम काम करेंगे, ये सारा ड्राफ्ट जो है वो बना के तैयार किया गया। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका नाम दिया गया नैप 2020। तो उसमें ये कहा गया कि भाई ये थर्ड पॉलिसी है।
इसके पहले जो पॉलिसीज बनी थी, जो हमने पहले भी पढ़ी हैं, 1968 में बनी और 1986 में दोबारा से उसमें कुछ चीजें ऐड की गई। उसका कुछ नाम है। फर्स्ट पॉलिसी का नाम याद है आपको 1968 में जो बनी? किसी को याद है 60s में कौन सा कमीशन आया, कौन सा अम, जिसके बेस पे जो है हायर एजुकेशन में भी काम करना है, उसमें भी काम करना है? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन। हाँ, कोठारी कमीशन, वेरी गुड। और फिर 1986 में इसमें कुछ एडिशन किए गए, कुछ नई चीजें लाई गई, कुछ यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये सब के लिए परमिशन दी गई। तो उसके बाद में जो है ये नई पॉलिसी अभी बनी है और अब ये लागू हो रही है। तो कई जगहों पे, कई यूनिवर्सिटीज में जो है इसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम शुरू कर दिया गया। प्रिलिमिनरी जो स्कूल्स हैं, जो कहना चाहिए पहले जो स्कूल शुरू होते थे वो 5-6 साल में से शुरू होते थे, डायरेक्ट फर्स्ट में एडमिशन हो जाता। अभी थोड़ा सा चेंज है, वो हम अभी देखेंगे। और MHRD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये चेंज हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो 4 पार्ट में जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने सेक्टर में बांटा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं, कहाँ क्या क्या काम करने हैं। तो उसमें एक स्कूल एजुकेशन था जो कि 17-18 साल तक होता है। उसके बाद में हायर एजुकेशन था, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कहीं कई कई जगह पे आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो। उसी को ध्यान में रख के एडल्ट एजुकेशन भी डाला, ऑनलाइन एजुकेशन भी डाला और इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे सेक्टर्स में कैसे इस स्कीम को, कैसे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, मेक इट हैपन, कैसे इसको जो है आचरण में लाना है, कैसे इस पे कार्यान्वयन करना है, ये चीजें एक तरह से ये 4 फोकस पॉइंट्स थे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के। अब इसमें look at this picture on your screen. One is showing existing academic structure like before NEP, New Education Policy 2020, and then the new academic structure. So here we can easily differentiate between the two systems. Like in earlier system, the education starts from like at the age of 5 or 6 and directly started from class 1. No preliminary education or any schooling is required. But in today's scenario, in new education policy, the foundation stage starts at the age of 3 years. So from 3 years, you can enroll your child to any preparatory school, and then he or she will be there for around, you can say, 5 years. 3 years for like Anganwadi or preschool or Bal Vatika like that. So 3 to 6 years there, and then there is first and second, class first and class 2, that is from the age 6 to 8. So this is, a multi-level, you can say, preparatory stage for 5 years. And then the child is again move forward to the somewhat at the primary level. And for 3 years, he'll study class 3 to class 5. And the age group will be around 8 to 11 years. So this is known as the foundational education. All right, the preparatory stage, and after that, and the mode of education will be like this teacher teaches them via playing or some activity based you can say learning, or interactive classroom learning, you can say.
Then there is a middle school where the student will be from at the age of 11 to 14, and the classes will be 6 to 8. So class 6 to class 8 age group will be 11 to 14, and this is for 3 years. And this is a middle stage. In middle stage, they learn more to the various courses like science, maths, arts, social science, and humanities. And they also perform some, project work or some experimental based learning. And then they enter to class 9, and at this higher stage, they will be from till class 12. It is called secondary level. The age group will be 14 to 18 years. And this is for 4 years. And this is the secondary stage where, they studied till class 10, they study all the subjects. And after that, they choose one discipline. And then they learn more about the in a particular discipline. So there is chances, or you can say provision of critical thinking and flexibility, and they can opt the subject by their own choice. In earlier system, there was a 10-year course from 6 to 16 age group, like from first to 10. And after that, they opt a subject and go to the higher secondary level from 16 to say 17, 18. And then they opt, you can say, a particular subject, particular stream, and they learn. And then they are eligible to go to various institutions or universities for higher education. तो ये जो सिस्टम है इसमें आपको दिख रहा है कि पहले वाला सिस्टम और अभी नया सिस्टम। तो पहले वाले सिस्टम में प्रिपरेटरी स्कूलिंग और ये सब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। हालांकि लोग डाल देते थे अपने बच्चों को 4 साल में, 3 साल में, लेकिन हर कोई नहीं भी डालता था तो भी क्लास 1 से किसी भी स्कूल में आप एडमिशन ले सकते थे। और वहाँ वो 10 साल तक जो है 6 से 16 साल तक वो क्लास 1 से लेके 10 तक पढ़ता था, और उसके बाद में अपने चॉइस का सब्जेक्ट लेके 2 साल और पढ़ाई करता था, और उसके बाद में फिर वो हायर एजुकेशन के लिए जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी उसने सब्जेक्ट चूज किया है या जो भी डिसिप्लिन में वो आगे काम करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो उस यूनिवर्सिटीज में चला जाता था और फिर पढ़ाई करता था। अभी जो है तो उसको हम कहते थे 10+2 सिस्टम। तो अभी जो हम जो सिस्टम में चेंज आया है वो उसको हम कहते हैं 5+3+3+4 सिस्टम। 5 इयर्स जो है वो प्रिपरेटरी स्कूल्स के हैं, जिसमें 3 साल से लेके 8 साल तक का जो है बच्चे वहाँ रहते हैं। और जो शुरू के 3 साल हैं वो आंगनबाड़ी है या प्ले ग्रुप है, आपने सुना होगा, बाल वाटिका या नर्सरी। तो उन स्कूल्स में उस तरह के स्कूल में वो पढ़ते हैं। तो उनका एक बेस बनता है, एक कहना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है कि वो आपस में एक एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो आपस में बोलना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज सिखाते हैं, कुछ पोएम सिखाते हैं। तो इस तरह से उनकी थोड़ी बहुत लर्निंग कराते हैं। उसके बाद में 2 साल तक फिर उनकी थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करते हैं, क्लास 1 और 2। तो एज ग्रुप 3 से लेके एज ग्रुप 8 इयर्स तक, एज ग्रुप मतलब 3 to 8 इयर्स, ये 5 साल जो है वो इस प्रिपरेटरी स्कूल में निकालते हैं, फाउंडेशन स्टेज इसको बोलते हैं। फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं, क्लास 3 से 5 तक पढ़ाई करते हैं। वो एज ग्रुप है 8 से 11 साल, और इसमें भी जो है वो थोड़ा सा प्ले करते हैं, थोड़ा खेलते हैं, कुछ एक्टिविटीज कराती हैं टीचर्स, है ना, कुछ इंटरेक्शन करते हैं आपस में। तो इस तरह से उनकी लर्निंग की जाती है। बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर डालने के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई और बुक नॉलेज जो है, रटने वाला नॉलेज, रट के फिर एग्जाम देने वाला, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश
है ये, ताकि वो सीखें और उसको फिर अपने, वही जो हमने पहले पढ़ा था ना, श्रवण मनन और निधि ध्यासन, तो पहले वो सीखें टीचर क्या बोल रही है, फिर वो उसको अपने हिसाब से उसका चिंतन करें, कुछ अपना क्रिएट करें, कुछ अपना दिमाग चलाएं और फिर उसको उस नॉलेज को कहीं इम्प्लीमेंट करें, जैसे छोटी छोटी चीजों पे। उसके बाद में फिर वो 3 साल के लिए मिडिल स्कूल में जाते हैं और एज ग्रुप जो है वो 11 से लेके आपका 14 साल। इसमें वो जो है मिडिल स्कूल मतलब कि क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक वो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और इस दौरान वो थोड़ा सा लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, जो भी भाषा है, इंग्लिश हिंदी है, और उसके बाद में साइंस है, मैथ्स है, आर्ट्स है, मतलब एक तरह से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको पढ़ाए जाते हैं। सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा नॉलेज उनको देना शुरू किया जाता है, ताकि वो हर क्षेत्र के बारे में जान सकें। और ये भी जो है एक्टिविटी बेस्ड ही होता है, थोड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कराने के लिए उनको इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और उसके बाद में फिर आता है सेकेंडरी लेवल, जिसमें कि 14 से 18 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, 9 से क्लास 12 तक। अब इसमें भी जो है वो फिर सब्जेक्ट ले लेते हैं अपना, जो भी उनको पसंद है, और फिर वो उस सब्जेक्ट को, बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ करके वो उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उस एजुकेशन पे, उस 12th के मार्क्स पे, 12th के डिग्री पे, या 12th में उन्होंने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से फिर वो आगे अपना इंस्टीट्यूट या कॉलेज चुन चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है, कुछ लोग चेंज भी कर लेते हैं, 12th उन्होंने आर्ट से किया या मैथ से किया, बाद में वो कॉमर्स पढ़ सकते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। तो इस तरह से जो है ये चेंजेस इसमें आते हैं। स्कूल लेवल पे हम देख लेते हैं। लेकिन मैम उसमें जो चित्र था बनाया हुआ था, उसमें हम्म। जो ऐसे आड़ी तिरछा करके लिखा हुआ था, उसमें फाउंडेशनल जो था सेकंड नंबर पे, देखिए गलत है वो। एंड प्री हाँ एलिमेंट्री जो है वो गड़बड़ है। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो क्या है कि स्कैन करके लगाया है इसमें, तो वो चेंज नहीं कर सकते, तो आप उसको देख लो, कोई खास वो वाली बात नहीं है। समझ में तो आ गया ना, प्रिपरेटरी एंड फाउंडेशन। जी जी जी। चलिए आगे चलते हैं। स्कूल एजुकेशन में कुछ चेंजेस हैं, कुछ हायर एजुकेशन में चेंजेस हैं, या फिर कुछ उसको और कहना चाहिए कि ओपन अप किया गया, कुछ और डायरेक्शन में काम किया गया। तो फर्स्ट वी सी स्कूल एजुकेशन। तो द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एनी फॉर दिस new education policy is basically the universalization of education, because um, according to the goal, according to the aim set by this policy, it is said ki 100% GER by 2030. All right, GER is gross enrollment ratio. How many students enrolled for education in school level? School level means starting from age group 3 to 18 years. How many? And the government wants the 100% of the people who are in this range, like from 3 to 4 years to 17, 18 years, 100% of them should enroll for school education. And as we have seen, 10 plus 2 system was replaced by a new system, which is 5 plus 3 plus 3 plus 4 curricular structure, corresponding to 3 to 8 years, 8 to 11 years, 11 to 14 years, and 14 to 18 years, respectively. Now there is a gender inclusion fund to provide, which is provided to all the girls and also transgender students to, promote them to, or encourage them to be a part of education system. They should enroll in various schools for the education to get the knowledge.
and class 10 and 12 board examination to, it's not just to score marks, but to test core competencies rather than, the memorized facts as the system based in earlier days. So it's based basically on the implementation of your knowledge. So questions are asked like that, like no direct questions. Some you have to, you can say it is to test your aptitude basically. And then vocational education will start from class 6 with some internship if somebody don't want to, go for higher studies and want to, work in a particular sector. So they can opt for any vocational training or vocational certification. So after the class 6, they can go for, internships in that particular area. Then up to at least class grade 5, it should be in the mother tongue or in any regional language, because a person born and brought up in a family where some language spoken by the family members, so the child is, familiar with those words, with those terminologies. So just to encourage, the children to, be a part of education system, they should enroll in any school of their approach, and don't afraid of, language, because as they grow up they understand the need of or the importance of education, then they go for other language also. But from the starting they should be, to make them, familiar to this education system. It is said ki education till grade 5, it should be in the mother tongue. And then by 2030, the minimum degree qualification for teaching will be 4-year integrated BA degree course. Earlier it was 2 years, then it is 3 years, and now it is 4 years. Means 4-year bachelor degree in education. If you have done, then you are eligible for, to become a teacher in any school. तो स्कूल एजुकेशन के बारे में जो गोल सेट किए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल लेवल तक जो भी बच्चे अवेलेबल हैं, जो भी एज ग्रुप है, उसका 100% एनरोलमेंट जो है वो होना चाहिए 2030 तक. मतलब अभी ऐसा है कि कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ अभी भी नहीं पढ़ते हैं. हालांकि हर गांव में स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं. अब उसकी कंडीशन के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक फैसिलिटी है. लेकिन उनके प्रपोर्शन में वहाँ बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क है. तो इस पॉलिसी में ये रखा गया कि भाई 100% जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए 2030 तक. उसके बाद में जो 10+2 सिस्टम है वो 5+3+3+4 में चेंज किया गया, और जो 5 इयर्स का कोर्स है वो 3 से 8 साल के बच्चे करेंगे. जो बाकी का आगे के 3 साल हैं वो 8 to 11 इयर्स के. आगे का जो 3 साल है, जिसे कि मिडिल स्कूल बोला, वो है 11 to 14 इयर्स. एंड देन 4 इयर्स जो है वो सेकेंडरी स्कूल का, वो 14 to 18 इयर्स है. उसके बाद में कुछ फंड जो है वो गवर्नमेंट देती है प्रमोट करने के लिए गर्ल एजुकेशन को या ट्रांसजेंडर्स को, क्योंकि ऐसा समझा गया कि जो है गर्ल्स को या ट्रांसजेंडर्स, ये जो है थोड़े डिप्राइव्ड जेंडर्स हैं, जिनको जो है इनकरेज नहीं किया गया. तो और थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए कुछ स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं, उसमें फ्री पढ़ाई होती है या कम फीस ली जाती है, कुछ कंसेशन, और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि वो आगे पढ़ें और आगे बढ़ें. और जो पहले एग्जाम्स होते थे 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स होते थे,
वो बोर्ड एग्जाम्स जो है, जो भी आपने पढ़ लिया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आते थे। अभी थोड़ा सा चेंज किया पैटर्न कि भाई आपका जो नॉलेज है, आपने किसी भी चीज के बारे में पढ़ा तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको कि जिसमें आपको वो जो नॉलेज आपने गेन किया उसको आपको इम्प्लीमेंट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं समझ में आया मैम, जो मेमोराइज्ड फैक्ट है वो पहले कैसे आते थे अब कैसे आते थे, डिफरेंट मतलब क्या डिफरेंट अब है? ये है कि जैसे आपने कोई भी चीज पढ़ ली है ना, जैसे कि अंग्रेजों ने शासन किया, ये किया वो किया, उसके ये थे वो थे वो थे, तो वो आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन रखेंगे कि आपने जो समझ लिया कि उन्होंने इस तरह से राज किया, ये प्लस था ये माइनस था, तो उस पे बेस्ड वो कुछ ऐसा क्वेश्चन देंगे कि आप मतलब उसमें ये है कि डायरेक्ट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, जैसे कि पहले हम पढ़ लेते थे कि हाँ ये चीजें वही हम लिख के आ जाते थे। अभी वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देंगे, जैसे कंपैरिजन करेंगे कि भाई पहले आपने मुगल पीरियड पढ़ लिया, आपने अंग्रेजों वाला पढ़ लिया, तो अब आप कंपेयर करके बताइए किसमें क्या था, क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी दोनों में। एक इस तरह से अच्छा, क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग मतलब कर हाँ रहे हैं। हाँ आप, मतलब रट्टा वाला नहीं था। हाँ रट्टा वाला नहीं था, आपको अपना थोड़ा सा उसको एनालाइज करके और फिर उसका आंसर आपको देना। फिर पहले जो वोकेशनल ट्रेनिंग था वो क्लास 10th के बाद वो स्टार्ट करते थे। अभी ये है कि यदि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं आगे, या उनका कहना चाहिए कि उनका कहीं और इंटरेस्ट है, वो अपना खुद का काम करना चाहते हैं या कहीं और अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इंटर्नशिप जिसे हम कहते हैं, उसमें वो जा सकते हैं। पर उसके लिए प्रिलिमिनरी एजुकेशन क्या रखी गई है, अब क्लास 6 रखी गई है, 6 साल तक, क्लास 6 तक आप पढ़ो और फिर आप जो है कोई, 6वीं के बाद मतलब ऐसे शुरू कर सकते हैं? हाँ उसके बाद में ये है, वैसे तो मुझे लगता है पहले भी होगा ये कि एजुकेशन जो है 5वीं क्लास तक मदर टंग में होगी, या जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे गुजरात है तो गुजराती, मराठी है तो मराठी, तेलुगु आंध्रा है तो तेलुगु, मतलब जो भी भाषा बोली जाती है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपनी मदर टंग से ही फैमिलियर होते हैं, उसी में वो चीजें समझ सकते हैं और उनको वो थोड़ा अपनापन सा लगता है। यदि आपने एकदम से उनको सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में जो कि वो बोलते ही नहीं है, जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है, तो यदि एकदम से हम उनको उसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो वो शायद वो चीज को समझ नहीं सकें, या फिर वो स्कूल से बचने की कोशिश करेंगे। तो एक फैमिली की तरह एक क्योंकि टीचर भी उसी लैंग्वेज में बोलेगी, टीचर भी जो है वो लोकली होती हैं प्रिलिमिनरी क्लासेस में, तो हायर एजुकेशन में तो फिर बहुत तरह के प्रोफेसर आते हैं। पर जो छोटा स्कूल है उसमें वहीं के टीचर्स काम करते हैं, वही लैंग्वेज वो बोलते हैं, तो वो अपने अच्छी तरह से उन बच्चों को समझ सकते हैं और कहना चाहिए उनको सिखा सकते हैं। और मैम बट ये लागू तो नहीं हुआ है ना अभी? हम्म, लागू तो नहीं हुआ है ना ये रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग वाला? नहीं नहीं, ये लागू हो ही गया है, काफी जगह पे ये शुरू हो गया है, काफी स्टेट्स में, क्योंकि कॉलेजेस ने भी इसको एक्सेप्टेंस दिया है और उसके हिसाब से, पर गवर्नमेंट कुछ साल देती है कि आप इतने, क्योंकि हर किसी का एक सिस्टम बना हुआ है, तो कि भाई आप इस साल तक या इतने सालों तक आप इसको जो है लागू करेंगे। मतलब तो यूपी में भी, मैंने उत्तर प्रदेश में भी कहीं नहीं ऐसा देखा जहाँ रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होती हो। नहीं, यूपी में तो वैसे क्या लैंग्वेज है, हिंदी ही बोलेंगे, उसमें तो हिंदी ही बोल सकते हो आप, हिंदी। हिंदी है, भोजपुरी भी है। भोजपुरी में पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो भोजपुरी में, वो बोली है, भोजपुरी लैंग्वेज नहीं है। रीजनल लैंग्वेज? रीजनल लैंग्वेज का मतलब है जैसे यूपी स्टेट का आप जो लैंग्वेज बोलोगे वो हिंदी ही बोलोगे, यूपी एमपी। जैसे महाराष्ट्र है उसकी मराठी है, गुजरात में गुजराती है। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में मारवाड़ी और बहुत तरह के लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, लेकिन पढ़ाई
तो टीचर वो लैंग्वेज बोल सकती है, वो बोली बोल सकती है। वहां पे भी 2-3 बोलियां हैं अलग अलग रीजन की, एक एक बोली दूसरे से अलग है, लेकिन जो मेन पढ़ाई की जो बुक्स हैं वो मारवाड़ी में नहीं है, वो हिंदी में ही है। पर हाँ, उसको एक्सप्लेन वो कर सकते हैं। तो जो राजस्थान की लैंग्वेज है, यूपी की लैंग्वेज है वो, या फिर बिहार की लैंग्वेज है वो, हिंदी ही कंसिडर करते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ, बोली जो है वो अलग है, लैंग्वेज भाषा अलग है। भाषा वो होता है जिसकी कोई स्क्रिप्ट होती है, जिसका कोई ग्रामर होता है। और बोली तो हर जगह बदलती रहती है, वो अपने तरह से। जैसे गुजराती है, वो उनकी अलग स्क्रिप्ट है, उनकी अपनी एक अलग लेटर्स हैं, वो उस तरह से लिखते हैं, है ना। पंजाब की अपनी है, पंजाबी है, वो लिखते हैं पंजाबी में, है ना। लेटर्स ही अलग है उनके। तो जैसे अब ये भोजपुरी है, वो हिंदी में ही लिखी जाती है, मतलब उसके लिए अलग से स्क्रिप्ट नहीं है। तो इसलिए उसको भाषा नहीं बोलेंगे, उसको बोली बोलेंगे, अ, जो वहाँ के लोग हैं वो बोलते हैं। फिर ये था कि पहले जो था 2 साल 3 साल का बीएड होता था, है ना। अभी वो 4 इयर्स का होगा, मतलब आप को 4 साल का बैचलर डिग्री करना पड़ेगा एजुकेशन में, किसी भी स्कूल के टीचर बनने के लिए। ये इसका एक प्रोविजन। Now there are some provisions in higher education sector. In higher education, again, the approach is same, holistic approach, for the better understanding, for the enhancement of the knowledge, and also the scientific approach and all. But there are some changes, like the curriculum of a degree course, maybe 3 years, maybe 4 years, depends on the particular discipline. And also there are, multiple exit options, and maybe some certification courses you can do within this period. And as we all know, after schooling, like after secondary education, after 12, the student can enroll themselves for the UG program, and after that PG program, and more if they are interested, they'll go for PhD programs. Before, it was like MPhil, a master in philosophy. This degree is, or this certification is necessary before doing PhD. But now, this MPhil courses will be discontinued. Like, it's not necessary to, first you have to do MPhil and then go for PhD. And there are, you can say, uh, credit courses also. So if you are having, like, you have done certain courses, certain certification courses, and you are going for some higher level. So if you, you can say, submit your credits. So in that particular course, so they take into account, and they transfer the credit in some other courses. So this type of facility, or this type of, you can say, improvement is there in this system. And then multidisciplinary education and research universities, that is called MERUs, MERUs, multidisciplinary education and research universities. uh, they are coming into existence, means their level of infrastructure, or the teachers, the faculties are of global standards, so that the students from the other countries, they may come within our country and they study, and the level will be like IITs and IIMs. So they are the models, you can say. So just to establish, a higher standard, you can say global standard within the country, because it is said ki, also for the students of Indian students, because if their family supports, their financial condition support, they go abroad for higher education.
in the other universities in other countries. So if that standard of education is available within the country, they will study within the country, they stay and study within the country, within India. So that much standard should be, achieved, then only this is possible. And also the students from the other countries, they can also come in and study in different university, multidisciplinary universities, because there should be, some, you can say in some sectors, there should be some research based education is very, very, attractive, you can say field, because they student can get the degree in their own institutions. But the problem comes when they want to, go into some at some higher level, and that facility is not available within the country, within the university. Then they search for some universities which can provide those facilities, and then they go uh, there and fulfill their their need and their thirst for the knowledge. So that is why this MERUs were are going to set up in the country itself. And then there is HECI, that is Higher Education Commission of India. This foundation is basically uh, will be created rather, as apex body, like at the higher, you can say a single umbrella body for the entire higher education system, excluding medical and legal education, because they are having their own very strong bodies to handle all those problems or whatever associated matters in those fields. So this commission will be set up, so that whatever the norms or the regulation, like their accreditation process or to establish the academic standards. So all these things will be taken care by HECI, that is HECI. And then the main goal here in higher education sector is that this GER to be raised 50% by 2035. The current GER is 26.3%. So the government under this policy want to raise this ratio, gross enrollment ratio, by 50% by the year 2035. हायर एजुकेशन के सेक्टर में भी कुछ चेंजेस किए गए, कुछ नए डेवलपमेंट्स लाने का जो है इस प्रावधान है इस नेप में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो पहले जो था, अभी भी पीएचडी के लिए कोई यदि अप्रोच करना चाहता है तो उसको पहले एमफिल करना होता था। तो अभी एमफिल को उन्होंने खत्म कर दिया है कि आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। आपने यदि मास्टर्स कर लिया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी एरिया में आप करना चाहते हो, आप उस यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हो। फिर वहाँ का जो प्रोसीजर है, वो एंट्रेंस लेते हैं या वो नेट देखते हैं या JRF स्कोर देखते हैं, ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी और उस कॉलेज पे। फिर एक नया जो है सेटअप किया गया, जिसे मेरू बोला गया। एक नई कुछ यूनिवर्सिटीज को जो है वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाने का एक तरह से एजेंडा है इस नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और उसे नाम दिया गया मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। जैसे कि IITs और IIMs का एक स्टैंडर्ड है ना, उसका एक उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास में इतना बड़ा कैंपस, इतने बड़े हाईली क्वालिफाइड
लेक्चर प्रोफेसर्स हैं वहाँ पर, और लैब्स हैं उनमें मतलब रिसर्च के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी फैसिलिटीज चाहिए, वो सारी चीज़ें वो मेंटेन करते हैं। तो उसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि सारी कोर्सेज तो आईआईटीज नहीं कराते हैं, आईआईएम्स नहीं कराते हैं, तो इस तरह से दूसरी यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया जाए ताकि उसका जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनली, ग्लोबली इतना अच्छा हो कि बाहर से भी स्टूडेंट्स आए, और जो बाहर अंदर के बच्चे हैं, जो इंडियन बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। उनको ये लगता है कि भाई वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, या जो वो काम करना चाहते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं, वहाँ के टीचर्स प्रोफेसर्स अच्छे हैं, या वहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, टेक्निकली वो ज़्यादा साउंड है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसी कोशिश है कि यहीं पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी बनाई जाएं ताकि यहाँ देश के बच्चे भी यहीं पढ़ सकें और बाहर के बच्चे भी यहाँ आके पढ़ सकें। फिर एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया, इसी जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी है। अम्ब्रेला बॉडी का मतलब ये है कि एक इतनी बड़ी बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहेंगे, और वही उसको रिपोर्ट करेंगे, और जो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो सारा देखभाल करने का काम इस कमीशन का होगा। और इसमें एक्सक्लूड किया गया मेडिकल और लीगल एजुकेशन को, जो लॉ पढ़ते हैं, जो मेडिकल करते हैं, क्योंकि उनका अपना ही काउंसिल जो है वो काफी बड़ा है, और वो सारी पॉलिसीज को देखभाल सकता है, और वो थोड़ा सा फील्ड से हट करके भी है। बाकी जो एजुकेशन है वो मेडिकल प्रोफेशन ही अलग हो जाता है, लॉ अलग ही हो जाता है, तो वो उनके काउंसिल्स देखते हैं। फिर एक और मेन पॉइंट ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कि जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, वो 50% जो है वो बढ़ाया जाए 2035 तक। अभी जो है वो 26% के करीब है, 26% है, तो उसको जो है वो 50% तक किया जाए 2035 तक। उसके बाद में थोड़े से और चेंजेस हैं कि जो एक ऑटोनॉमस बॉडी, इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। सम अदर चेंजेस आर वन ऑटोनॉमस बॉडी, दैट इज नेशनल एजुकेशन फ्री एक्सचेंज टेक्नोलॉजी, दैट इज NETF. NETF is, you can say, a body which is created to provide a platform for you can say on the the use of technology to enhance the learning, to enhance the assessment, to enhance the planning or administration. That means ki there should be some inclusion of the various techniques in these sectors. So this forum take care of those things, so that it can be the learning process or the assessment process, how the examination, how the test, how the the planning, how the administration of those courses in those universities and other colleges in any education sector, you can say, can be improved using the technology. Then there are some national assessment centers like PARAK. PARAK is, it is the abbreviation of Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. So this National Assessment Centers has been created, and just to assess the, students. And also it opens up, you can say, a gate or entry for the foreign universities to set up some campuses in India. Then virtual labs, existing e-learning platforms such as Diksha, Swayam Prabha will be used.
under this NEP, New Education Policy. Virtual labs means there are some universities, they share their, you can say, the lab proformas. Simulation of various projects they can exchange, like some students can access their lab, their experiments virtually. Virtually means they are having some simulation programs and they can access on a call, because all some universities they are having, you know, a common platform, so they can exchange their various simulation programs for different experiments. So the students of those universities can exchange their you know, projects or these simulation programs, so they can access them. So these platforms are Diksha, Swayam, Swayamprabha, we have already discussed, or you might have learned in teaching aptitudes in ICT also. Then there is a Right to Education Act 2009. The aim is to provide primary education to all the children aged 6 to 14 years and forces education as a fundamental right. It is important because this Right to Education Act, it itself aims to provide primary education to all the children within the age group of 6 to 14 years. And that's why it also, you know, you can say, provide some break or, you know, stop to, you know, for the child labor, because it is prohibited to employ a person or a child of which is of 14 years or less than that, right? So because their primary thing is to, you know, go to the school and learn, have some education, have some you can say certification, like first, second, third, fourth, fifth. So that's why it is said that primary education is compulsory to the children which, of having the age 6 to 14 years. And that's why it is termed as a fundamental right. Fundamental right means it is the, you know, it's a right to education. तो अदर चेंजेस जो हैं वो क्या हुए कि एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल एजुकेशन फ्री एक्सचेंज टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो ये NETF है, इसका जो काम है वो ये है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया नया जो कहना चाहिए कि एडवांसमेंट आ रहा है, उसको जो है एजुकेशन में लाया जाए, और जो पढ़ाने की टेक्निक है या फिर सीखने की जो एक प्रक्रिया है ना, और इसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है कि बच्चे का जो इवैल्यूएशन है, मतलब उसको आप कैसे बोलेंगे कि हाँ इसको, इसके इतने मार्क्स, इतने, पहले ये था कि भाई सिर्फ आपको एग्जाम देना है, 3 बार देना है, 4 बार देना है, और उस एग्जाम के बेस पे ही उसको मार्क्स मिलते थे। अभी ऐसा है कि छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, उसका उनका अटेंडेंस देखा जाता है, उनका काम करने का तरीका देखा जाता है, वो किस तरह से जैसे छोटे बच्चे हैं तो कैसे वो पढ़ते हैं, कैसे वो, उनकी राइटिंग स्किल क्या है, समझने की क्या है, क्या वो रीडिंग कर सकते हैं, है ना, क्या वो क्लास में आंसर करते हैं, क्या वो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट करते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के असेसमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, ग्रेडिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, क्रेडिट्स बोलते हैं, वो दिए जाते हैं। और अच्छे करने के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सुधार सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों में जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये इसका काम है। फिर नेशनल असेसमेंट सेंटर्स हैं जो कि एक तरह से स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, उसका असेसमेंट, उसका रिव्यू और एनालिसिस ऑफ नॉलेज जो है किस तरफ, चारित्रिक डेवलपमेंट की तरफ, होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जो है वो कितना है, ये एक सेंटर्स बनाने का जो है गवर्नमेंट का न्यू पॉलिसी में एक कहना चाहिए कि गोल है।
नेशनल असेसमेंट सेंटर्स। फिर वर्चुअल लैब्स जो हैं वो बनी। वर्चुअल लैब्स का मतलब ये है कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो सिमुलेशन पे हैं। प्रोग्राम्स बने हुए हैं उनके, और उन प्रोग्राम्स से रिजल्ट आते हैं। फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिकली काम करते हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म है दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये जो आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उसको यूज करके जो है वर्चुअली, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है कि हाँ हम साथ में मिलके काम करेंगे, हम साथ में अपना जो भी हमारे पास में है जिस भी फील्ड में है वो हम एक कॉमन सर्वर पे रखेंगे। जो भी बच्चे आपके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्चुअल लैब की थ्रू लर्निंग के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया। फिर राइट टू एजुकेशन, एक मतलब कि शिक्षा का अधिकार जिसे आप कह सकते हो, 2009 में उसका जो उद्देश्य है वो ये था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पूरे जितने भी बच्चे हैं इस एज ग्रुप के 6 से 14 साल तक के बच्चों को वो मिलनी चाहिए। मतलब ये है कि ये उनका अधिकार है। वो जो सरकार है वो उनको फ्री देती है। मतलब कि आप वहाँ जाओ और अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो और वहाँ पढ़ाई शुरू कर दो। और साथ साथ में उसको इनकरेज करने के लिए उनको कुछ कुछ फैसिलिटीज भी दी जाती है। कहीं पे उनको खाना देते हैं, है ना, और बुक्स हैं या जो भी चीजें उनको चाहिए ताकि वो आए और पढ़ें। सिर्फ पढ़ना है उनको। तो क्योंकि ये उनका अधिकार है, किसी भी बच्चे का ये अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, कि 14 साल तक वो इधर उधर काम ना करे, इधर उधर कोई ट्रेनिंग ना करे, बल्कि सिर्फ पढ़ाई करे। और उसके बाद में वो चाहे तो जो भी अपना काम है, जो भी वो सीखना चाहता है, करना चाहता है, वो कर सकता है। तो ये जो था वो दिस इज ऑल अबाउट अवर कोर्स एंड हियर इट एंड्स हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये आपका कोर्स है यहाँ तक। और आप चाहें तो हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं।